Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the fourth video lecture of the chapter Force and Pressure. In last video, we have seen different types of force. One was contact force and other was non-contact force. In contact force, we have seen muscular force. I think you don't have any problem in understanding muscular force. Force present in our muscles is called muscular force. For example, if bull is pulling the plow, मतलब अगर जानवर हल खींच रहा है, then there we are using muscular force of the animal. If horse is pulling the tanga, there muscular force of horse is being utilized to pull the tanga. Or bullock cart is moving due to the muscular force of the animal. So what we do is called muscular force. If I am raising my hand, if I am raising down means putting down my hand, it is due to muscular force. Our body move due to a muscular force present in the muscles, that is called muscular force. Next is friction. For this friction, I have roughly told you, for this friction there is a special chapter that we will see after force and pressure. So don't worry about friction. You just remember that friction is a force that act between any two body that is in contact. कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा. एंड दिस फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन. ये हमेशा चाहेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाए, वो एक दूसरे पे मूव नहीं करे. सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन. Friction is sometimes useful, sometimes it is harmful. If there is no friction, you can't walk on the road. If there is no friction, you can't write on your book. And if there is lots of friction, means the tires of the vehicles is worn out, खियाता है, मतलब खत्म होता है, is due to friction. आपके शूज के सोल धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन के कारण ही हीट प्रोड्यूस होता है. आप दो हाथ को रगड़िएगा तो यू विल फील हीट. सो फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन के कारण दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है उसमें वियर एंड टियर मींस डैमेज होता है. आप देखिएगा कि साइकिल लगातार चलाने से क्या हो रहा है, व्हील्स जो होते हैं, मतलब जो रॉड जैसे मशीन, कोई मशीन है उसमें दो मूविंग पार्ट है, वो मूविंग पार्ट एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे हैं या क्या कहते हैं रोल कर रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि वो मशीन धीरे धीरे खराब हो जाएगा, तो वो पार्ट उनको बदलना पड़ता है. सो वियर एंड टियर टेक प्लेस ड्यू टू फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज समटाइम फ्रेंड एंड फ्रिक्शन इज समटाइम हार्मफुल फॉर अस. Next is mechanical force. Force that is produced by machine is called mechanical force. That you don't have any problem to understand. Next is non-contact force. In non-contact force, there is magnetic force. To understand magnetic force, in your book, in page number 135, and activity 11.6. Activity 11.6 and page number 135. In that there is one activity. In that activity it is said that you have to take 3 pencils. मतलब इस प्रकार से आप 3 पेंसिल रखेंगे, एक पेंसिल, दूसरा पेंसिल, तीसरा पेंसिल, 3 पेंसिल रख दिए और इसके ऊपर एक मैग्नेट रख देंगे. मतलब there is a magnet on this pencil. This pencil should be round. मतलब अगर देखेंगे ना, पेंसिल जो होता है वो इस प्रकार से भी आता है, फेबर कैसल का पेंसिल जो होता है इस प्रकार से आता है, और कुछ पेंसिल इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार का शेप का होता है. हमको ऐसा पेंसिल नहीं लेना, हमको गोल पेंसिल लेना है, ठीक है. So we have to take round shaped pencil, and on that we have to place a magnet. This is a magnet. From class 6 you know every magnet have 2 poles, a north pole and a south pole.
So for example, this is the north pole and this is a south pole. Now you have one more magnet. This is the north pole, this is the south pole. So what is saying that take 3 pencil, on that pencil place a bar magnet and take another magnet in your hand and bring magnet close to this magnet. So for example, I am saying this is magnet number A and this is magnet number B. So I am saying that bring magnet number B close to magnet number A, means a magnet A, but make sure it should do not, means this magnet should not touch this. So now if you bring it close, and this is the north pole and this is the north pole, if you bring it closer, you know from junior classes, with north and north there will be repulsion, means this magnet, since you are holding the magnet in your hand, so when you bring it, this magnet will roll over the pencil and move away. So this is repulsion. Now rotate the magnet. Now what you have done, you have brought south pole here and north pole here. Now again you bring this magnet close to this magnet. You will see that this magnet will start rolling towards magnet B. Means you can say south and north there is attraction. So in this activity, the movement of magnet A is due to magnetic force applied by magnet B, and since magnet have poles, if similar poles are close, then there will be repulsion, maybe south pole and south pole also. What we can do, you take this magnet and you bring it in on another side. This is south, then there will be repulsion. If there is north, then there will be attraction. So what I am saying, if the poles are similar, means similar poles, south south, north north, there will be repulsion. If the pole is dissimilar, then there will be attraction. So whether it is south or north, south and north, or north and south, there will be attraction. So this is the activity from which you understand this thing. Next is in page number 136. There is another activity, that is 11.7. In this, it is said that you take a table. So this is a table, and you take a plastic straw. You take a plastic straw, cut it from the center. So now you have two straws. Take straw number 1 and hang it at the edge of the table. If straw number 1 you have hanged on the table, take straw second straw, the second straw which is remaining, and what you have to do, rub this with a piece of paper. इस प्लास्टिक के स्ट्रॉ को एक पीस ऑफ पेपर से रगड़कर इसको इसके नजदीक लाएंगे. Means you will bring it close to this. So what I have done, I have rubbed this portion with a piece of paper, and I hold the straw from here and bring it close to this hanged straw. We will see, means this straw will show movement. ये कुछ movement show करेगा. Again, second thing, what it is saying that you take the straw, again take the hanged straw and rub it with same piece of paper. So now this hanged straw is also rubbed and this is also rubbed. If you bring it close to this, it will start, this hanged straw will start moving away from this paper. Means this straw.
In first case, this straw was moving towards the hand-held straw. In first case, this straw was moving towards the hand, हाथ में पकड़ा हुआ straw के तरफ ये move करेगा. और in second case, this straw will start moving away from the hand-held straw. So there will be attraction between a charged straw, and we have not rubbed this, so this is a uncharged straw. So there will be attraction, and when you have rubbed this, for example, this is the straw. When you have rubbed this, it was already rubbed, so it was charged, and you have charged this one also. दोनों को रब करने के बाद चार्ज कर दिए, so there will be repulsion. थोड़ी सी चीजें बाउंस हुई होगी दिमाग से. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम लोग पास्ट में चलते हैं. क्लास 6, लेट्स मूव टू क्लास 6. क्लास 6 में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें और आपको मिलेगा. यू रिमेंबर इन क्लास 6 और इन जूनियर क्लासेस you have seen all matter is made up of atom. कोई प्रॉब्लम नहीं. हर एक मैटर चाहे जो भी हो, ईटा पत्थर जो भी है, हर चीज मैटर किसको कहेंगे? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. कोई भी, हवा, पानी, पत्थर, कुछ भी, और हर मैटर जो वो एटम से बना हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं. एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल particles. I know I have explained this in class 6, so it is there in class 6, so don't worry. 3 fundamental particles. कौन? Electron, proton and neutron. These are 3 fundamental particles. Electrons are negatively charged, ये negatively charged होता है. Protons are positively charged and neutrons are neutral, so they have no charge. So all matter is made up of atom, and atom is further made up of 3 fundamental particles: electron, proton and neutron. So one more thing, arrangement of fundamental particles. क्या है fundamental particles का arrangement? At the center of atom is called nucleus. Center of the atom, अगर किसी एटम की बात कर रहे हैं, हम इसी एटम का एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो center of the atom is called nucleus, and in nucleus proton is present and neutron is present. So since we know neutron is having no charge, proton is positively charged, it means nucleus is positively charged, and electrons keep on revolving. So electron is represented by E, proton P, neutron small n. So electron is revolving around this. So from junior class you know proton and neutron is present at the center of the nucleus, means center of the atom, that is called nucleus, and electron keep on revolving around this. There is a force of attraction between electron and proton. You remember हम लोग बात किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम बोले थे कोई भी दो मास एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है, उसी प्रकार एक फोर्स है. क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, so there will be a
attraction between oppositely charged particles. So electron is negatively charged, proton is positively charged, so there will be attraction. Since it is revolving around this, so electron keep on revolving around the nucleus. यहां तक बात कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब एक और बात, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या बात कर चुके हैं? टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट proton is at the center, electron is revolving around this nucleus. Proton is positively charged, electron is negatively charged. Atom is neutral. ये कहने का क्या मतलब? ये कहने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron. किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। तो क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली। तो अगर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो ओवरऑल चार्ज ऑन एटम will be 0। एटम पे चार्ज 0 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, यहां तक कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक ग्लास का रॉड है, दिस इज ए ग्लास रॉड, ठीक है, ये ग्लास रॉड है। अब रॉड है तो ये भी मैटर है, मैटर है तो ये भी एटम का बना हुआ होगा। एटम है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मतलब एक मैटर मिलियंस ऑफ एटम का बना हुआ होता है। तो ये जो रॉड है इसमें पॉजिटिवली सेंटर भी है और निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी है। हाँ, दोनों का संख्या बराबर है। आई एम सेइंग कि दोनों का संख्या बराबर है। अब मान लेते हैं ये ग्लास रॉड है और हम लिए एक सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क का कपड़ा लिए, उस सिल्क के कपड़ा से इसको इस प्रकार से ढक दिए। मतलब हम कह रहे हैं ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, और इसको एक दूसरे में रगड़ दिए हैं, हम इस प्रकार से रगड़ रहे हैं। यू नो, आप ये चीज जानते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग हाथ आपस में रगड़ते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है। उसी प्रकार जब सिल्क के कपड़ा को इस ग्लास के रॉड पे रगड़ेंगे तो कुछ तो हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ, हम लोग फील नहीं करेंगे मगर कुछ तो हीट जरूर प्रोड्यूस होगा, थोड़ा ही हो, कम ही होगा वो हीट। तो इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हुआ, एंड हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए, ठीक है। अब ये एनर्जी किसको मिलेगा? तो ये एनर्जी, चूंकि ये कपड़ा है और ये रॉड है, हम इसको इस प्रकार से रगड़ रहे हैं तो हीट यहां प्रोड्यूस हुआ है, तो ये एनर्जी इस रॉड को और इस कपड़ा को दोनों को मिलेगा। ये एनर्जी इस रॉड के इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा और इस कपड़ा के इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो जब इसको रगड़ेंगे तो दोनों को जब एनर्जी मिलेगा, तो जब किसी चीज को एनर्जी मिलता है तो उसका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं सॉलिड,
सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। जब इसको गर्म करते हैं, इसको एनर्जी मिलता है, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको और ज्यादा गर्म करते हैं तो पार्टिकल और दूर दूर हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको ठंडा करते हैं तो हीट निकाल रहे हैं, ठंडा करना मतलब हीट निकाल रहे हैं। When we are taking out heat from the gas, पार्टिकल्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो नजदीक नजदीक आएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में से फर्दर हीट निकालेंगे, मतलब ठंडा करेंगे, तो वो उसके पार्टिकल्स की एक्टिविटी और कम हो जाएगा और वो और नजदीक नजदीक आ जाएगा। इससे हम लोग क्या समझे, हीट देने पे पार्टिकल्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो सेम थिंग आई एम सेइंग हियर कि इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी कपड़ा में और इस रॉड में दोनों में बढ़ गया। चूंकि यहाँ पे हम लोग सिल्क क्लॉथ की बात कर रहे हैं और ये ग्लास रॉड की बात कर रहे हैं, तो आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़िएगा नेचुरल फेनोमेनन, उसमें इस चीज को हम फिर से समझाएंगे और फिर से बताएंगे। मगर अभी आपको हम बस अभी के लिए बता दे रहे हैं कि ग्लास का जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बाउंडेड होता है, वो कमजोरी से मतलब कम ताकत से खींचा होता है, कंपेयर टू सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस की तरफ, मतलब सिल्क का न्यूक्लियस सिल्क के इलेक्ट्रॉन को कुछ ताकत से खींच रहा होगा, उसी प्रकार ग्लास रॉड का न्यूक्लियस ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन को कुछ ताकत से खींच रहा होगा। ये जो ताकत है वो सिल्क में ज्यादा होता है कंपेयर टू ग्लास, मतलब ग्लास में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द ग्लास रॉड इज वीकर कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सिल्क क्लॉथ। सो इसका मतलब क्या होगा, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिलने के बाद ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन कुछ निकलकर बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आएगा तो ये कहां जाएगा, अगर आपके पास 10 रुपया है और आप हमको 5 रुपया दे दिए तभी तो आपके पास 5 रुपया बचेगा, तो आप अपना 5 रुपया कम करने के लिए किसी को तो दीजिएगा, कोई लेगा आपसे पैसा तभी तो आपके पास से पैसा घटेगा। तो अगर हम इन दोनों, ये ग्लास रॉड है और सिल्क है, इन दोनों को रब कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां जाएगा, सिल्क क्लॉथ में जाएगा। ओके, तो इसका मतलब सिल्क के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया और ग्लास के पास लेस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मतलब मान लेते हैं कि x अमाउंट ऑफ प्रोटॉन था और x अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था। चलो मान लेते हैं, हमको डाटा ही देते हैं, मान लेते हैं कि 10 प्रोटॉन था 10 इलेक्ट्रॉन था, और इसमें मान लेते हैं सिल्क में 15 प्रोटॉन था और 15 इलेक्ट्रॉन था। तो जब दोनों को रगड़ दिया और हम बोले कि चूंकि ग्लास का अट्रैक्शन वीक होता है तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। तो इसका मतलब ग्लास के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। सो अब ये सिल्क क्लॉथ जो हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। चूंकि ये ग्लास रॉड एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 9 इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन का 9 प्रोटॉन दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बट चूंकि यहाँ 10 प्रोटॉन है तो एक एक्स्ट्रा चार्ज, so glass rod will be positively charged. So if a body loses one electron then also it becomes charged, and if it gains one electron then also it becomes charged. So here I am saying the straw which I have rubbed, it has become charged. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव की निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन या हुआ या लॉस हुआ उससे मतलब नहीं है, मगर ये चार्ज हुआ और ये अनचार्ज्ड बॉडी है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यहाँ भी कुछ समझाने की बात है, हम फिर आपको जब नेचुरल फेनोमेनन पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, अभी सिर्फ इसको याद कर लीजिए। देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी।
अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, क्योंकि इसको भी उसी कपड़ा से रब किए हैं, मतलब उसी पेपर से रब किए हैं, जिस पेपर से इसको रब किए थे उसी पेपर से इसको भी रब किए, दोनों सेम मटेरियल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मान लेते हैं उल्टा कि पेपर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये निगेटिवली चार्ज और ये भी निगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब अल्टीमेटली दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे। और चूंकि एक ही मटेरियल है, क्योंकि ये स्ट्रॉ प्लास्टिक है और हम लोग पीस ऑफ पेपर लिए हैं, पेपर बदल नहीं रहे हैं हम, सेम पेपर है, इसका मतलब दोनों पे सेम चार्ज होगा। अगर सेम चार्ज है तो हम जानते हैं सिमिलर चार्ज रिपेल, प्रोटॉन प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्सन, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। सो from this activity we understand that whenever a body is rubbed they get charged due to loss or gain of electron. Due to this loss or gain of electron the body get charged on the basis of nature, whether it is positively charged or negatively charged, there will be attraction or repulsion. If two body is positively charged there will be repulsion, if both the body is negatively charged then there will be repulsion, if a body is positively charged other is negatively charged then there will be attraction. एक और बात थोड़ा सा, बस एक, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक थोड़ा सा बात और बता दे रहे हैं। इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड ये क्या होता है, ये रबर का बना हुआ होता है और इसको जब फर मतलब एनिमल के बॉडी के स्किन के ऊपर जो हेयर होता है उसको बोलते हैं फर। जब इसके साथ इसको रब करेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये निगेटिवली चार्ज होगा। और जब हम एक ग्लास रॉड लेंगे और उसको जब सिल्क से रब करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। कारण जब फर के साथ इबोनाइट को रॉड करेंगे तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के इबोनाइट पे आ जाएगा, तो फर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, इबोनाइट हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रगड़ेंगे तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे चला जाएगा, तो सिल्क हो जाएगा निगेटिवली चार्ज ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ electron. Okay, I have tried to explain you the activity. Don't worry, we just understand the activity for time being. If still there is any problem we will discuss in the chapter natural phenomenon. Okay, thank you.